success. Yes, Ms. Yes. May I Please. start? Oh, sure, sir. Yeah. Thank you. Good morning, one and all present here. Today, it is my distinct privilege to introduce a distinguished and accomplished business leader who has made an enduring mark in the realm of finance, operation, and strategic growth. He would be sharing his exceptional journey from a CS to CEO. Please join me in welcoming Mr. Venkat Ravindra Ravi. Mr. Ravi is a C-suite business and finance executive with a prominent career spanning over 2 decades. His journey has been one of the transformation and achievement with remarkable contribution to various sectors. Mr. Ravi's professional journey commenced in esteemed financial institutions like BOB Capital Market, Colin Stewart, INGA, Anand Rathi Financial Services, and Carve Investor Services. His expertise in investment banking and private equity, coupled with his unwavering commitment to organizational success, has been the cornerstone of his journey. Notably, Mr. Ravi's leadership journey took a significant turnover when he joined Javed Habib Hair and Beauty in 2012 as a chief financial officer. Under his visionary guidance, he set up a remarkable turnaround, steering the company's financial re-engineering initiatives and attracting global investment. His remarkable ability to navigate complexities while ensuring compliances and profitability. He has been a hallmark of his tenure. In recognition of his exceptional Anyoma and leadership, Mr. Ravi assured to the role of Chief Executive Officer at Javed Habib and Hair and Beauty in 2021. As a CEO, he continued to drive the brand's growth across diverse markets, overseeing a network of 850 outlets spanning India, Dubai, Singapore, and Bangladesh. His strategic progress has been instrumental in achieving an impressive post-COVID growth of 40% in 2022 to 2023, a testament of his reliances and foresights. Beyond his professional accomplishment, Mr. Ravi's academic journey is marked by excellence with a PGDBA in finance from Symbiosis University and LLB from Brahmpur University and in ACS from Institute of Company Secretary of India. He brings a rich tapestry of knowledge to the table. Participants can accept an engaging and informative session that will equip them with the necessary knowledge to navigate. Now I would like to invite Mr. Ravi to continue with today's session. Thank you, Suyash, and good morning, all of you. And a special thanks to my friend, Mr. Nityanand Singh, for thinking that I'm worthy of speaking to all you gentlemen and ladies, that I have something that I can share with you so that it will be a good hearing exercise, I would believe. Can I start, Nitya, with your permission? Yes, yes, yes. Yes, most welcome. You are most welcome in our Vidya Vijay Foundation group. Yes, Thank you please so continue. much. And good morning, everyone, once again. And there have been kind words spoken by Suyash about me. It is nothing but recording of some events that have happened in my life. Nothing more and nothing less. When Nitya asked me to speak before all of you, I thought, yeah, already जो जानकार हैं, जो lawyers हैं, I think I presume and assume that the audiences are advocates and qualified lawyers and company secretaries. मैंने कहा है भाई
सब क्वालिफाइड है, उनके सामने मैं क्या कहूंगा, सब नॉलेज लेके एग्जाम्स पास करके बैठे हैं. So there is nothing to speak as such. Nitya, correct me if I'm wrong. No. Of course, of course. And another aspect in today's digital world, where is so much of content is available on the internet. There is so much of knowledge that is available, that is shared by great people, and there are so many speakers available across the globe where you can sit at home and still hear them. It not used to be the case when we studied our CS. We used to patiently wait for speakers to come and discuss on the subject and all. But nowadays, I think everything is available everywhere. You just have to just pass some examinations, because that is the requirement to be qualified under some degree or the other. Other than that, everything is available overnight. It is how you take it forward with your own wisdom and knowledge, how you apply to your own professional life, that is very important. Then considering all that, नित्या को मैंने कहा, नित्या भाई देखो, कुछ सब्जेक्ट पे बात करूं मुझे उचित नहीं लग रहा है कि मैं कोई सब्जेक्ट पे शेयर करूं that are already there in the people's knowledge. Another thing is that there are much better speakers than me who can throw a great in-depth knowledge on the subjects. So I did not choose any subject. मैंने बहुत विटी होकर के क्या मैं अपने बारे में बोलूंगा, बस अपने बारे में बोलूंगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, nobody can judge me. So I easily took a topic where I can share my own experiences with all of you, that how my journey has been. So that's why I selected this. भाई अपने बारे में बताऊंगा, सबके साथ अपने बारे में शेयर करूंगा, जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियां किया है, जो अच्छा भी किया है. All this I think might contribute to all of us that we have assembled here. Before I start on the topic of my journey from so and so to so and so, मैं आपसे दो वादा करना चाहता हूं. In these times, giving 1 hour, sparing 1 hour out of our busy lives to someone else's either discourse or lecture or whatever you may call it, is itself is a very big thing. So first of all, thank all of you for sparing this 1 hour's time for me. So I really appreciate that. That is number one. Number two, दो आपने कीमती समय मुझे दे रहे हैं 1 घंटे के लिए नित्यानंद जी के जरिए, मैं इतना प्रॉमिस करूंगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा अपने बारे में. ये जनरली कोर्ट में वादे किए जाते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. जब अपने बारे में बोलने जा रहा हूं, आई प्रॉमिस यू गाइस, आई विल नॉट लाई. Certainly, These are my certainly. two promises, and I'll make this 1 hour time as worthwhile as possible to the best of my abilities. क्योंकि मैंने बहुत बार बचपन से सुनता हूं, अन्नदान महादान, विद्यादान महादान. अन्न की दान करेंगे तो महादान कहला जाता है, विद्या की भी दान करेंगे तो महादान कहा जाता है. बट आज के समय में समय का दान जो है वो सबसे बड़ी दान है. मैं मुंबई में 20 साल से हूं, तो समय को जो कीमत बहुत अच्छी तरह जानता हूं. जो आप सब लोगों ने 1 घंटा मेरे को दान दिया है, तो आई एम ए पर्सन हु गॉट 1 hour फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. सो आपने जो दान दिया है उसका मैं सही उपयोग करूंगा. That's what my promise to you guys. Please, please. And I want this what you call the next 1 hour's conversation like a totally pure conversation. I don't want it to be a lecture. I don't want it to be something ज्ञान, ऐसा कुछ भी नहीं है. I hope you understand me. It is always Yes, a sir, sir. conversation that will enrich each one of us. So, Did I miss? yes, yes, please go ahead. Nitya? Yeah, am I audible to all of you? Yes, yes, yes. You are audible to all of us. Yes. So it is always better to have an engaging conversation rather, digging into knowledgeable aspects of subjects and all, which you all have books and YouTubes and Googles. So उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है. हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आप जानना चाहते हैं कि we have started from scratch and you achieve the heights on the top. So therefore, your experiences, सभी लोग जानना चाहते हैं कि भाई एक ऐसे, and it is a very short span of the time. Hardly it is 10, 12 years you achieve such a great height.
तो सभी लोग इस कारण से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सभी लोग जाने कि भाई कैसे हो सकता है, स्पेशली यंगस्टर्स। प्लीज। Yeah, I think it will be good for youngsters to share my side of the story and how I did this and how I traversed the entire journey with a law degrees in hand. Predominantly, company secretaryship course is a law degree, I suppose, in corporate laws, as well as LLB is a pure law degree. And I'm now sitting on the business to manage. तो ये जर्नी जो है, मेरे को अपने आप को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता था. To be very honest, when I started my studentship in NIRC Delhi, I started my education of CS in NIRC North Indian Regional Council in Prasad Nagar, Delhi, where Nitya Bhai and me were used to flock to the library every day, meet there and talk to each other. भाई कैसे निकाले CS के कोर्स. तो काफी लगता है कि हमने सोचा समझा भाई कर लेते हैं, अभी ज्वाइन कर ही लिया तो कर भी डालते हैं. There is only one way to exit out of a given tough situation is to clear it, rather than running away from it. So that was the basic intention to join CS, and we have completed the course. उसमें एक मेरा मित्र थे उस टाइम में. In fact, Nitya, you remember clearing this, I think group 2 in the final of CS examination way back in 98, 99, 2000 time, was it considered or perceived to be difficult? भाई group 2 का जो है final में काफी मुश्किल है. तो one of my friends came to me and said, वेंकट भाई ऐसे देखो, ये ग्रुप निकाल देंगे, CS बन जाएंगे, हम लोग जबरदस्त कर लेंगे. मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, CS कर लोगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? नहीं बन सकते हो. CS or a degree is, it will give a platform below which you will not fall. It is only an enabling platform which I consider. भाई CS किया तो मैं उस लेवल से नीचे नहीं गिरूंगा, अगर जो भी करूंगा उसको ऊपर जाने की कोशिश करूंगा. बट इतना तय है कि LLB कर लिया, CS कर लिया, इसके नीचे हम नहीं गिर सकते हैं. Whether you talk of employment, whether you talk of practice, you are ensuring a safety net arrangement for yourself in your life professionally. This is what I thought. But ये मेरा सोच था way back in 2000, around 23 years before. वही सोच को मैंने बरकरार रखा है कि भाई जो भी हम पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो एक नीचे लेवल नहीं आने के लिए रीजन है. ऊपर लेवल जाने के लिए और मेहनत लगेगी, और ज्यादा सोच लगेगा, नॉलेज लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगी. You can stop me anytime and interrupt me, because this is not any knowledge sharing session. This is the sharing of my life experiences. So anybody can stop me anytime. If you are feeling bored, then I can just shift the topic as well. That's not a problem. No. Of course, everyone is ready to hear your experiences, and all of the friends are invited. Any questions? Then you can continuously ask from Mr. Ravi, and certainly, let that be an engaging experience. Let that be a conversational experience, rather than one person speaking his side of the story and others just listening. So it won't be that encouraging. This is what I believe, and I always try to engage with people. And being a CEO, my mandate is to engage with my employees, my stakeholders, my board of directors. It is not कि मैं अपना ज्ञान देते जाऊं because मैं finance में कुछ जानता हूं, law में कुछ जानता हूं. It is not. I have to engage people, and wherever required, I need to pitch in with my experience and knowledge of the provisions बोलो, जो भी law के provisions बोलो, I have to pitch in wherever it is required. The primary objective is to engage with relevant stakeholders. तो आज की डेट में stakeholders आप लोग हैं, मैं भी उसका हूं एक stakeholder. मैं ये engage करने की ट्राई कर रहा हूँ, stakeholders को कैसे एक समय का कीमती information में share करूं अपने बारे में. So I started CS and we qualified in CS and we were searching for jobs. And in 2003 it was so difficult to get jobs around, because कंपनी सेक्रेटरीज को ऐसा है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, CS करोगे तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं काम कर पाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, XYZ all have been said about the CS profession. And this I am talking about the amendments in the Companies Act before 2013. Post the amendments in 2013 of the Companies Act, company secretaries have been empowered to a great extent by the reformation in the Companies Act itself, as far as the compliances and other penalties are concerned. So उसके बाद CS का रोल काफी बड़ा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी जो बुक्स में पढ़ाया गया है वो एक्चुअली दिया जा रहा था 2013 से. बट हम लोगों के टाइम में 2003 में तो हम लोग को ऐसे था भाई,
क्वालिफाई कर लो, कहीं पे नौकरी ढूंढ लो, लग जाओ, मिनट्स बनाते रहो, एजेंडा बनाते रहो, बोर्ड मीटिंग में बैठते रहो, अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो, या तो पीछे बैठो. This was a kind of things that we passed through and during those times, but things have been really, things have improved drastically post the amendments in the acts, and compliances have been given their due importance and all, and we were very happy. By abhi to company secretaries or legal professionals per se are empowered, to educate their investors, stakeholders, board of directors. काफी अच्छा लगा. Then I searched for a job here and there. कोई इंटरव्यू में बुला ही नहीं रहा था, भाई जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब तब मिलेगा कोई इंटरव्यू में बुलाएगा, तभी आप अपने बारे में बता सकते हो. एंड आई यूज्ड टू रन अराउंड, भाई कोई जॉब है तो बता देना यार. नित्या भाई ऑलवेज डिसाइडेड, मैं तो भाई जॉब नहीं करूंगा, मैं तो प्रैक्टिस ही करने वाला हूँ. हम तो सर्विस वाले हैं, माइंड ओरिएंटेशन भी सर्विस का ही था, तो वी वर जस्ट रनिंग अराउंड फॉर जॉब्स. तो कहीं मिला नहीं था. फॉर्चुनेटली वन सिंगल डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी to be an assistant company secretary in JK Tyres. Many of you who reside in Delhi know that JK Tyres is based out of Delhi and situated at Bahadur Shah Jafar Marg. JK Group में मेरे को assistant company secretary का role मिला, and I joined that very happily. I started with 8,000 rupees per month. I was so happy. I called my father, said I got the job. Now you are free. You no longer need to send me any money. So now I am financially independent. That was my happiest hour, let me tell you, not even when I became the CEO. When you become financially independent, it is the greatest freedom that one can achieve after the studentship or the studies, which I got in my first job. तो बहुत खुश हो गया था कि भाई अभी तो पूरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सीख के आया हूँ, अब इसका ही लिमिट है. ऑफिस जाता था. ऑफिस जाने के बाद क्या काम दिया जा रहा है हमें, तो ये पढ़ा जाए भाई कंपनी सेक्रेटरी बहुत बड़ा आदमी होता है कंपनी में. कंपनी सेक्रेटरी का चारों ओर कंपनी सब घूमती है. आई स्टिल रिमेंबर इन माय सब्जेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस इन कंपनी लॉ इन इंटरमीडिएट इज कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन अराउंड विच द एंटायर कंपनी रिवॉल्व्स. ये हमें पढ़ाया गया था. बाद में पता लगा वी आर रिवॉल्विंग अराउंड कंपनीज फॉर जॉब्स, नोबडी इज रिवॉल्विंग अराउंड अस. दिन भाई पढ़ा कुछ और, हो कुछ और रहा है मार्केट में, क्या काम है? बोले चलो भाई जॉब तो लेना ही है, इंडिपेंडेंस चाहिए फाइनेंशियली. जॉब मिल गई, जो भी नॉलेज सीखा है, वी वर वेरी फ्रेश आउट ऑफ सब्जेक्ट्स. बहुत दिमाग लगा लगा के पढ़ाई कर करके सोच रहे थे कि सारे के सारे कंपनी सेक्ट ही अप्लाई कर डालूं जॉब में. देन आई केम टू नो, आई थिंक आउट ऑफ माई एंटायर सिलेबस not even 5% is applied there, because that business does not require that kind of application of law. Then I started, बस ये सब बोली तो जब भूल जाऊंगा मैं जो भी पढ़ाई किया है, शायद पढ़ाई में जो बताएगा इतना एप्लीकेबल नहीं है इधर. Then I went to my boss, who was the vice president JK Tyres, very well learned man. 20 साल से कंपनी सेक्रेटरी थे JK Tyres ग्रुप में. तो मैं इनके पास गया, सर ये क्या है? बोलते वेंकट अभी अभी तो नहीं ज्वाइन किया है, अभी ऐसे ही रहेगा, धीरे धीरे तुम लर्न करोगे, धीरे धीरे तुम सीखोगे. वाई यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन, व्हाट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन. मैंने सोचा सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं ऑफिस जाता था, बैठता था, सीनियर कुछ काम देते थे, भाई ये जरा मिनट्स का वेरीफाई कर लेना, ये एनुअल रिपोर्ट आया, एनुअल रिपोर्ट में करेक्शन कर देना, और एजेंडा का पेपर्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मेरा सीनियर कंपनी सेक्रेटरी ने बना दिया. मेरे को बोला है कि फ्लैप लगा देना बीच में, 2 एजेंडा के बीच में एक फ्लैप लगा देना. मैंने सोचा भाई सब लगा के फ्लैप लगाऊंगा, वो क्या करूंगा, फ्लैप तो लगानी पड़ेगी जब वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल ही रहे हैं तो आई ओपन द एजेंडा पेपर्स एंड आई पुट द फ्लैप्स इनसाइड एवरी एजेंडा, सेपरेटिंग एवरी एजेंडा पेपर्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. फिर अंदर जाके वाइस प्रेसिडेंट साहब को दिया, सर ये देखिए. एंड यू नो गाइस, ही वाज एलिंग एट मी, क्या तुमने कंपनी सेक्रेटरी किया है, पेपर में लगाना भी नहीं आता फ्लैप. देन आई गॉट सो बिलिटल्ड, बॉस इतना सब सीख के फ्लैप नहीं लगा पा रहा. सर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, पहले कभी लगा ही नहीं था, बट अभी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू डू वेल नेक्स्ट टाइम. बोलते हैं ये वो करके. देन माय लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर गाइस. सी व्हेन योर बॉस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सर्विस एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इन प्रैक्टिस, बट इन सर्विस इफ योर बॉस एल्स एट यू, बहुत दुख लगता है और बहुत अपमान भी लगता है कि भाई सब पढ़ाई करके आया, मेरे को ये कुछ भी बोल दे रहा है मन में जो भी आया है.
बट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, भले ही उस टाइम पे अपमान लगे, भले ही उस टाइम पे you feel belittled, but it is going to contribute to your career, which has happened with me. कि भाई जितना भी वो गाली देगा, जितना भी वो बोलेगा, उतना ही अच्छा सीख के तुम जाओगे. You might not be happy at that point in time, but the learnings that you will take from that, you will never repeat that mistake. So I have learned from my very first job, भाई सुन के ले लेने का जो भी सीनियर बोलते हैं, क्योंकि विच माइट हेल्प इन द फ्यूचर. मेरे को नहीं पता था सही में हेल्प करेगा नहीं करेगा, बट मैंने सोचा था कि हेल्प शायद कर लेगा, कुछ बोलूंगा नहीं. तो दैट कंटिन्यूड फॉर 3 months एंड फाइनली आई हैड टू राइट माय एलएलबी एग्जाम्स. फाइनल एग्जाम्स लिखना था. आई नीडेड 3 months लीव. मैंने सर के पास गया, सर मुझे छुट्टी चाहिए था 1 महीने का. बोलता पागल है, 3 महीने हुआ ज्वाइन किया, अभी तेरे को 1 महीने का छुट्टी चाहिए. बोलता मैं नहीं देने वाला हूँ. Well, sir, please consider, because this is my final year of LLB. I need to clear my exams so that I'll come back qualified and I'll continue. I'll never ever take a long leave. बोलते possible नहीं है. मैंने बोला सर, then I have to choose between my job and my studies. मैं बाहर आया, 1 घंटा सोचा भाई करना क्या है, जॉब छोड़ दूं कि LLB के एग्जाम छोड़ के अगले साल दूं. मैंने सोचा जॉब तो कभी भी मिल जाएगा, अभी तो यंग हूँ, जवान हूँ, लेकिन LLB एग्जाम्स रिपीट नहीं करूं कि मेरा बैकलॉग हो जाएगा. देन आई हैव डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड आई वेंट टू माय होम टाउन एंड परस्यूड माय फाइनल ईयर ऑफ LLB. एग्जाम्स लिख के आ गया. थोड़ा दुख था क्योंकि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नारा लगाया जा रहा था 3 महीने पहले, वो 3 महीने में खत्म हो गए. और LLB के एग्जाम्स देना पड़ गए. तो LLB के एग्जाम्स दिया, नॉट वरिंग अबाउट, चलो जॉब तो मिल जाएगी, देख लेंगे जो भी होगा. एक बार मिल गया तो हो सकता है दोबारा भी मिल जाए जॉब. Then I went back, written the exams, come back, LLB खत्म हो गई है. Again I came back to Delhi and again searching for jobs. I was revolving around the companies. Nobody was even calling me for interviews and all. The same story came back. मैंने सोचा यार बड़े कठिन है ये जॉब पाना. 8-9 हजार रुपए की भी जॉब नहीं मिल रही है, इतना सब चीजें हैं. Particularly those company secretaries who are in the audience today can observe. We have got some training program of 15 days. MSOP करके होता है. At that time, our time, it used to be called SMTP, Secretarial Modular Training Program. तो उसमें 15 days में almost 30 people आते हैं, जाने माने जो अपने अपने सेक्टर्स में practitioners, senior employees of the organizations. जैसे आज मैं बैठा हूँ सीनियर बन के इधर, वैसे कई लोग आते थे. उन सबको देख के काफी चार्ज अप हो गए थे. I still remember there was a gentleman who used to be the managing director of one company who took our lecture. उनको देख के काफी प्रभावित हो गए थे हम लोग कि यार CS बन के MD बन गया ये बंदा. हम तो भाई नौकरी की खोजने के चक्कर में है, MD बन गया, CS बन के कैसे हो सकता है. मुझे लगा कि भाई वो ये नसीब से बन गया होगा ये, बट अपनी बस की बात नहीं है. हम तो कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी पाते रहेंगे. बट ये MD CEO बनने का अपने बस की बात नहीं, सोचना भी नहीं है. ये सोचना भी गलत है. ठीक है, वो लेक्चर दे रहा है, हम सुन रहे हैं, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग हिम. दैट वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट पॉइंट इन टाइम. फिर मैं भूल गया, आगे बढ़ गया लाइफ में. देन आई गॉट बैक टू दिल्ली जॉब ढूंढने के लिए. जॉब मिली नहीं थी. फाइनली आई कॉल्ड अप माय वन ऑफ माय अंकल्स हु वाज अ सीनियर कंपनी सेक्रेटरी. अंकल जॉब है नहीं है, बेरोजगार हूँ, कुछ है तो बता दो. He said there is an opportunity in Karvi in Hyderabad. If you are interested to relocate to Hyderabad. मैंने बोला कहीं पे भी रिलोकेट कर लूंगा, भाई बाप से पैसे मांगने में शर्म आ रही है अभी. Then he said, okay, well, come, I'll refer you. He referred me to Karvi Group and I went there for interview. Uncle बोला कि someone else of the Karvi Registry Group who was the vice president, he will take your interview. I said, okay, fine भाई, interview दे देंगे, अगर जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है. Then you know guys, why I'm sharing this? This might be irrelevant to you. बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, आई वेंट टू कार्वी ऑफिस, वेटेड फॉर द इंटरव्यू. द गाय हु यूज्ड टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कार्वी ग्रुप, मिस्टर गणपति सुब्रमण्यम, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम. आई गिवन 20 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, गणपति सुब्रमण्यम. ही यूज्ड टू कम एंड गो. बोलते इंटरव्यू के लिए आया क्या? हाँ भाई इंटरव्यू के लिए आया, तो बैठो बोलता था. एंड 6 hours आई वेटेड. शाम को मैं सेक्रेटरी साहब को पूछ रहा हूँ, भाई साहब कहाँ गए? बोलते बैंगलोर चले गए. अरे भाई अभी तो दिखे थे मेरे को. नहीं अभी बेंगलुरु में है. मैंने बोला आप कल आओ. आई भाई जो नौकरी पाना चाहते हैं उसके लिए क्या 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 नहीं करना पड़ता. आई वेंट सेकेंड डे अगेन पूरा बैठा था. बोला गणपति साहब कब आएंगे? बोलता बैठ जाओ, वो आ जाएंगे.
Then I again sat. Again he came in front of me, said, "Okay, I am coming to you. Just wait." फिर गायब हो गए साहब. फिर पूरा 6 घंटा निकल गए. 6-8 घंटा, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठता था. सेकेंड डे वॉज ऑल्सो ओवर. 12-18 आवर्स बैठक चली गई है विदाउट एनी इंटरव्यू. मैंने बोला भाई सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो बोल दे कम से कम मिलके. ये 12 घंटा 18 घंटा बैठा हूँ, ये तो परेशान हो रहा था मैं. Then he asked me to come on the third day. Again I went on the third day. Again sat for another 6-7 hours. So I waited for 25 hours to get the first interview, guys. शाम को 7 o'clock the gentleman came to me, भाई अभी अंदर आओ. मैंने बोला भगवान की साक्षात्कार हो गया. 25 घंटा वेट करने के बाद एटलीस्ट भाई साहब ने अंदर तो बुलाया मुझे. अभी तब तक मेरा पूरा आशा चली गई थी कि मेरे को जॉब मिले ना मिले, इसको मिलना है, क्योंकि जो मेरे को वेट करा रहा है 25 घंटे से, 3 दिन से इसको चारों ओर घूम रहा हूं मैं. फाइनली कॉल्ड मी इनसाइड एंड सेड, वेंकट आई एम सॉरी. मैंने बोला बहुत धन्य होगा मेरे जीवन, आपने सॉरी बोल दिया आफ्टर 3 days ऑफ वेटिंग, 25 hours ऑफ वेटिंग. बोला सर कोई बात नहीं है. एंड गाइस यू नो व्हाट ही सेड, he looked at my CV and said, Venkat, you are a company secretary, already qualified professional है. I don't want to ask any questions to you. ये बताओ रजिस्ट्री में काम करेगा? मैंने बोला सर जॉब मिल जाना चाहिए, बस रजिस्ट्री हो कोई भी हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, जॉब चाहिए. He was just laughing. बोलते डोंट वरी, सैलरी कितना चाहिए? तो मैंने बोला भाई सर घर चल जाना चाहिए. घर मतलब अपने आप को चल जाना चाहिए. बोलते ठीक है. Then he said, okay, 12,000 rupees. And you go very happy because I lost the job at 8,000 per month and I got job 12,000 rupees a month. जॉइन भाई बहुत खुश हो गया था मैं. जैसे बाहर आकर पापा ने जो भेजा हुआ पैसा था खर्च कर डाला पार्टी में. भाई मेरे को वैसे जॉब मिल रही है, अभी तो मैं उड़ा दूंगा 2-3 हजार रुपए जो हाथ में, पार्टी कर लेंगे. वी वेंट टू मूवीज एंड ऑल. फिर उसके बाद कहानी शुरू हो गई ज्वाइनिंग की. हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइनिंग डेट नहीं बता रहे. मैंने बोला अंकल सब हो गया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, अभी ज्वाइनिंग का डेट नहीं बता रहे. नहीं बताएंगे बताएंगे. गाय आई वेटेड फॉर 3 months टू ज्वाइन द कंपनी. कैन यू बिलीव मी? 3 दिन मैंने इंटरव्यू के लिए वेट किया था, 3 महीने ज्वाइनिंग डेट के लिए वेट कर रहा था. आजकल 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 करके 3 महीने टाइम पास कर लिया उन लोगों ने कि इस बंदे को करें क्या. ऑफर लेटर तो दे दिया लेकिन रखना कहाँ है, ये जानने के लिए मेरे को 3 महीने लगे. कि 3 महीने के बाद दे हैव अगेन कॉल्ड मी अप, सॉरी 3 महीने हो गए, अभी आप ज्वाइन कर लो. और जो मुझे दिया गया था रजिस्ट्री डिवीजन उससे हटा के मेरे अंकल के पास डाल दिया उन्होंने. बोले अभी तुम्हारे जो रेफर किया गया है कंपनी सेक्रेटरी उनके पास चले जाओ. मैंने बोला यार जो भी यार, अभी इतना थक गया हूँ, पॉकेट में पैसे भी खत्म हो गए, पार्टी कर लिया, सब कुछ जॉब मिला करके, अभी 3 महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है. देन आई जॉइन कार्वी एंड आई यूज्ड टू गो. माय अंकल सेड कम डू दिस मिनट्स, डू दैट मिनट्स, ये मिनट्स कॉपी करना, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी रेजोल्यूशन देना. भाई ऐसे 10 दिन चले गए. 10वें दिन के बाद मैं अंकल के पास गया, अंकल मजा नहीं आ रहा. बोलते पागल तेरे को जॉब मिलना था बहुत बड़ी बात थी, अभी 10 दिन के बाद मजा नहीं आ रहा. मैंने बोला अंकल पढ़ा तो बहुत कुछ था बट ये रेजोल्यूशन सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी बनाने में मजा नहीं आ रहा. कुछ एप्लीकेशन बोर्ड मीटिंग ये वाला स्टोरी बताइए ना. सिंस आई वाज फ्री टू टॉक टू हिम, ही सेड लाइफ विल बी लाइक दिस ओनली बेटा, आगे जाके जब मौका मिल जाए तो कर लेना, बट मेरे पास रहोगे तो यही करना पड़ेगा. मिनट्स बनाते रहो, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करते रहना, मैं करेक्शन करता रहूंगा, बोर्ड के पास देता रहूंगा, सर्टिफिकेट कॉपी दे देना. Then guys, you don't believe me, I got so frustrated. I have learned so many things in my CS, financial management, corporate laws, economic laws. किसी की एप्लीकेशन समझ ही नहीं आ रही थी. एप्लीकेशन होगा क्या भाई, किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं. फर्स्ट बिग विन इज सैलरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. आई सेड अंकल आई वांट टू लीव. बोलते अभी ज्वाइन कर रहा है तो अभी सैलरी मिलेगा तेरे को, 10 दिन ही हुआ, 20 दिन में सैलरी मिलेगी. बोला नहीं अंकल मजा नहीं आ रहा मुझे, मतलब रहूंगा, रिजाइन तो नहीं कर दूंगा बट कुछ और बताओ काम. He understood me since we knew each other for almost 30-40 years. Then he said, okay, let us try to do some good stuff. कब मिलेगा तो देखेंगे. Guys, let me tell you, मेरा frustration मिल गया 11वां दिन पे. And Karvy used to have an investment banking division called Karvy Investor Services, which used to handle IPOs, private equity, mergers, amalgamations, delisting, open offers, ये सब हैंडल करते थे. मैंने जिसके पोजीशन में ज्वाइन किया था कार्वी में, वो कंपनी सेक्रेटरी को वो पोजीशन ऑफर किया गया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. एंड दैट गाय डिड नॉट जॉइन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिकॉज ही वांटेड अ हाइक ऑफ 3,000. ही सेड मेरे को 15,000 सैलरी चाहिए सो दैट आई वुड जॉइन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग.
Then Karvi people said, no, we cannot give you any hike, but we are promoting you to investment banking division. मेरे अंकल ने बोला, भाई ये नहीं ले रहा है, तेरे को जाना है क्या? मैंने बोला, अंकल खुशी खुशी चला जाऊंगा, 2000 कम कर देना भले ही सैलरी. Then I got my iBanking vice president interviewed me. He said, Venkat, we cannot give you any hike, but you are welcome to join us because there is a vacancy. Without saying anything, without uttering any word, I said, from tomorrow I'll join your division. Then I joined there. Friends, why I'm telling you all these stories, सोच अगर होता है ना, रास्ता बनता जाता है. I think many of you are seniors enough to understand what I've been telling. Juniors will understand in future. Juniors will understand during the journey. But सोच अगर है, रास्ता अपने आप बनता जाता है, जितना भी कठिन क्यों ना हो. 8,000 की जॉब मिली थी और मैंने एंजॉय किया था, वो जॉब ही छोड़ दी 3 महीने में, सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखे. फिर ज्वाइन किया, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया. So the learnings that you get throughout your journey are really important than any other thing. मन में कुछ है तो मन का इच्छा मत मारो. अगर इस ग्रुप में किसी को कपिल सिब्बल बनना है, राम जेठमलानी बनना है, बन सकते हो. There can be another Ram Jeठmalani, there can be another Kapil Sibal, there can be another great lawyers. I'm very sure. But have you thought about that कि बनना है कि नहीं बनना है, कि बन ही नहीं सकते हम लोग. अगर ऐसे सोच रखेंगे तो it will be very difficult. And I am the living example. जिसने 9,000 रुपए के धक्के खाए, आज 500 करोड़ का सिस्टम मैं चला रहा हूँ. ये कोई बड़ी बात नहीं है. कोई 50,000 करोड़ की सिस्टम चलाने वाले हैं, 5 लाख करोड़ के भी सिस्टम चलाने वाले हैं. But whatever limitations that I have, I got an opportunity to serve this kind of an organization and to discharge responsibilities of a CEO. This one is, friends, from there, Karvi में join किया था. I thought finance के लिए Mumbai is the best place to work. फिर मैं जैसे ही मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंक की अपॉर्चुनिटी सोचने लगे, मुंबई कब जाऊं, कि मेरे अंदर, आई डोंट नो, आई शुड नॉट यूज द डेरोगेटरी वर्ड का चुल बोलते हैं, ये चुल बहुत था कि अभी जॉब मिल गई, सब ठीक है, अभी मुंबई जाना है, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंस हब ऑफ इंडिया, तो जो भी सीखना है उधर ही सीखना है. देन आई वर्कड इन कार्वी ग्रुप, गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू रेज फंड्स फॉर द कॉर्पोरेट्स, IPO. आई वेंट थ्रू द एंटायर IPO प्रोसेस. जो सेबी रेगुलेशन समझ नहीं आए थे CS करते समय, उस सबका मैंने प्रैक्टिकली कर लिया था. सेबी से मीटिंग्स कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज से मीटिंग कर लिया, कोई डर नहीं है मन में. जनरल मैनेजर ऑफ सेबी बोलो, चेयरमैन से भी बोलो, किसी के साथ बात कर सकते हैं. इतना सारा अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया. देन आई थॉट आई वुड नाउ मूव टू मुंबई, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. देन मैं एक कंपनी के लिए IPO करता था. द कंपनी नेम इज पृथ्वी Information Solutions. We did around 200 crore IPO for that company way back in 2006. And there used to be a CFO, Mr. Sastri, and we used to interact more often with him for IPO, execution of IPO. फिर उनको मैंने बोला, साहब मेरे को मुंबई जाना है, तो कोई अपॉर्चुनिटी तो बताइए. बोलते ठीक है, देख लेंगे. मैंने भी बोल के भूल गया कि ऐसे बातों बातें बोल दिया, वो भी भूल गए. फिर ऑन वन फाइन डे आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिम, वेंकट तेरे को मुंबई जाना था ना? बोला सर बिल्कुल, कल जाना है क्या? बोलिए. बोलते नहीं कल नहीं जाना है. I got a reference from someone in Mumbai who you are looking for investment banking candidate. Just talk to this gentleman. His name is Padam Jain. He was ex-general manager of Indian Bank. He is heading investment banking group in Andhra. I said, why not? And I took his number, went for the interview. He said, भाई कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, कब ज्वाइन करेगा बता दे. मैंने बोला अभी ज्वाइन करेगा. बोले सैलरी कितना लेगा? मैं डबल से ज्यादा लूंगा. बोलता पागल हो गया क्या? बोले सर पागल नहीं हुआ हूँ, मुंबई में खर्चा ज्यादा है. ये थोड़ी ना शादीशुदा भी नहीं हो, बस खर्चा ज्यादा है तो ज्यादा चाहिए, सिंपल सी बात है. Then he negotiated with me, closed that offer at somewhere around, but I got around 150% hike by coming to Mumbai. मैं खुशी खुशी मुंबई आ गया. I joined investment banking, and again I was doing IPO activities, merger activities, open offer activities. Guys, I'll bring one point where I committed a biggest mistake of my professional career, so that it might be useful to you. मैं जूनियर था, मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, एंड टू एंड कर लेगा IPO? मेरा इंटरव्यूअर ने पूछा आनंद राठी में. मेरे को जवाब क्या देना था? हाँ ही बोलूंगा ना तो माँ बोलूंगा तो मना कर देगा, जवाब नहीं देगा. I said yes, I will do everything I can do alone, I will do this that. बहुत फेंका इंटरव्यू में कि सब कुछ कर डालूंगा, सिर्फ आप जवाब दे देना हाइक देके. He said okay, he believed me actually. जितने भी मैंने बोला था, भाई ठीक है, सब कुछ करने के लिए बोल रहा लड़का, शायद कर जाएगा. फिर मैंने ज्वाइन कर लिया सब वादा करके कि मैं A to Z कंपनी को स्क्रैच से लिस्टिंग तक करा दूंगा. उसने भी मेरे पे भरोसा कर लिया, जॉब दे दिया.
देन आई स्टार्ट अगेन लर्निंग इन आनंद राठी। यार बड़े बड़े बातें तो बोल दी इंटरव्यू में, अभी करने का समय हाथ में बोलता है ये ले मैंडेट, ये जा प्रोमोटर से बात कर, इसको 70 करोड़ राइज करना है, इसको पूरा प्रोसेस समझा के आ जा। तब मेरी फट गई। जो इंटरव्यू में बोला था A to Z में कर लूंगा, अभी ये बंदा बोला अभी चल कर ले। मैंने फोन ए फ्रेंड किया, अभी ऑप्शन उठाया, अभी क्या करूं भाई? फोन ए फ्रेंड, आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड, बॉस ऐसा ऐसा सिचुएशन है, करना क्या है? मैं थोड़ा बहुत तो पता है बट A to Z लीड नहीं कर पाऊंगा। देन ही सेड ऐसे 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 बात कर लेना। मैंने भगवान का नाम लिया, निकल पड़ा हैदराबाद प्रोमोटर से मिलने, जिसको 70 करोड़ की IPO की जरूरत थी। मैंने सब समझा दिया। हमेशा मेरा एक था कि जी लॉयर्स भी जो कोर्ट में आर्गुमेंट करता है ना, वो जो जानते हैं उस पर ले आते जज को। आई थिंक यू कैन वॉच फॉर दिस सेंटेंस, बिकॉज आप जो जानते हो जज को उस पर ले आओ। सबसे बड़े खास तरीका ये है, सामने वाले विटनेस को आप जो जानते हो उस पर लेके आ जाओ। अगर आप बार बार लेके आ रहे हो मतलब यू विल विन द केस, बट आप उस टेरिटरी में एंटर करो जहां पे आप नहीं जानते हो, देयर आर फेयर चांसेस दैट यू विल लूज द केस। नित्या, करेक्ट मी, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई Yes, डोंट नो yes, sir. एनीथिंग अबाउट प्रैक्टिस ऑफ लॉ। Yes, sir. तो सबसे 100% जो भी है, correct. Correct. वही मैं प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस किया, मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो जानता था कंपनी एक्ट के बारे में ज्यादा, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी था, फाइनेंस के बारे में वो लोग जाने, मैं मेरे को क्या लेने देना। तो मैं जो भी बोलता था, मैं बोलता था कंपनी से, कंपनी लॉ ये कहता है, कंपनी लॉ वो कहता है, कंपनी लॉ के हिसाब से ड्यू डिलिजेंस ऐसा होना चाहिए, नहीं तो सेबी आपको मना कर देगा। तो मैं उनको ये बोल देता था जो मैं जानता हूँ। वो लोग भी खुश, भाई बच्चा को जानता है कंपनीज के बारे में। देन फाइनेंस एंगल आई स्टार्टेड टू लर्न कि हाउ द कंपनीज आर वैल्यूड, हाउ द कंपनीज आर परसीव्ड इन द मार्केट, how the stock changes, how SEBI will question, all these things I learned over a period of time. But I picked up. Good part is that at least मैं जो बोल के आया था, मैं शुरुआत किया अभी सीखना, अभी जो बोल दिया अभी सीख जाऊंगा, जरूर फटाफट सीखूंगा, तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ। देन फ्रेंड्स, आई विल गिव यू वन एग्जांपल एंड आई विल नॉट एक्सटेंड दिस डिस्कशन। If you remember, if many of you are lawyers or company secretaries, you can watch for IPO खुलने से पहले एक क्लॉज रहता है जिसमें प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन एक दिन इश्यू खुलने से पहले लाया जाता है, लाना ही चाहिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो हुआ क्या था, सब IPO प्रोसेस खत्म हो गया, इश्यू खुलने का है 2 दिन, 2 या 3 दिन इश्यू खुलने का आ गया, सेबी हैज अप्रूव्ड द डॉक्यूमेंट, और I was the dealing officer on my desk in investment banking. Suddenly we friends were drinking at my residence in Bombay. बोले मजा करते हैं, अभी IPO का सेबी का अप्रूवल मिल गया, हम बैठे हैं ग्लास वाइस लेके पी रहे थे। सॉरी गाइस इफ आई ऑफेंड एनीबॉडी, बिकॉज मेरे जर्नी है तो मैं बोला ना सच्चाई बात करूंगा, तो थोड़ा ऑफेंडिंग होगा भी तो यही बात करूंगा। तो हम लोग बॉटल वॉटल लेके बैठे हैं, ग्लास वेस लेके बैठे हैं। भाई परसों यार मेरे कलीग्स भी तारीफ कर रहे थे, वेंकट तेरा 70 करोड़ का इश्यू खुल रहा है, वंस दिस इज डन यू विल बी मच एनरिच्ड, मच मजा आ जाएगा। मैं भी बहुत खुश हो गया, इश्यू खुल रहा है मेरा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इश्यू सोलिली हैंडल्ड बाय मी। बॉस गाइस यू डोंट बिलीव मी, 2 पैक जाने के बाद याद आया प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन देना ही मिस हो गया, और प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन था तकरीबन 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपए का प्रमोशन कंट्रीब्यूशन के बाद वो सर्टिफिकेट बैंक से लेके मर्चेंट बैंकर सर्टिफिकेशन देता है, दैट सर्टिफिकेशन हैज टू गो टू सेबी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ओपन द इश्यू ऑन द अप्रूव्ड डेट ऑफ सेबी। ये था लॉ। मेरे को वो पैक पीते पीते याद आया, भाई ये तो छूट गई यार, बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ गई, करें क्या? 3 करोड़ की सवाल है, एक ही दिन है, अगर जमा नहीं करेंगे all those approvals of SEBI and all will go haywire. Again, they have to rework on the entire IPO process. मान लीजिए जैसे IPO किसी भी प्रमोटर के जीवन में एक बड़ी ड्रीम होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मेरे काम की वजह से किसी प्रमोटर का ड्रीम शैटर होने वाला है। Guys, imagine the kind of pressure I would have gone through. मैं थोड़ा सा स्लो बात करूंगा बिकॉज प्रेशर अभी भी मैं फील कर रहा हूं उसका। हेलो, Please. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. 3 करोड़ लाना है एक दिन में, करना क्या है? मेरे का तो पूरा I was really rattled. Nitya, sorry, say there is some problem. I'm not able to view anybody. Just wait. Yeah. Yes, yes, you are audible. You all are. सभी Yeah. सभी लोग हम लोग देख पा रहे हैं आपको, आप आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं। अच्छा,
Yes, please go ahead. सर बोरिंग तो नहीं है, ना देखिए ना, कुछ very शेयर करना interesting. चाहता हूँ एक्सपीरियंस. Very I hope very that's interesting. not boring, but still I am forced to speak about myself because this has been the topic that I have chosen for myself. So 3 करोड़ लाना है एक दिन में. 10 बजे के पैक की सारी नशा उड़ गई. अभी लगा कि जॉब तो जाएगी जाएगी, वो तो मैं तय कर दिया था कि जॉब जानी है, दैट्स ओके, वी विल फाइंड अनदर जॉब. बट द क्वेश्चन इज हु विल compensate the dream of a person, of an entrepreneur who wishes to raise 70 crores, जिसका इश्यू का मुहूर्त फिक्स किया गया है डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन के बाद उसका मुहूर्त फिक्स किया है, इश्यू ओपन होगा. और मैं बैठा हूं एज अ डीलिंग ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल था सेबी कॉम्प्लायंसेस के लिए. जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लाया है, सर्टिफिकेट को तो दूर की बात है. मैंने इमीडिएटली रैंक ऑफ द, मैंने बोला करना क्या है. बहुत डर लग गया. अभी एक ही चीज है भाई, या तो 2-3 पैग और पी लो, टल हो जाओ, या दूसरी चीज ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट एडमिट योर मिस्टेक एंड टॉक टू द रिलेवेंट पर्सन admitting that mistake and try to rectify that with a possible solution. Then I thought the second one is better rather than going down with 4-5 pegs more. मैंने प्रमोटर को फोन किया रात को 10 साढ़े 10 बजे. मैंने बोला सर, बोलता वेंकट जी इतना रात को क्यों फोन किया आपने? बोला सर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इश्यू ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बोलता बोलिए. सर एक प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का क्लॉज था जो हमने आईपीओ डॉक्यूमेंट में लिखा है, वो भरना था 3 करोड़. बोलता है भर लेंगे ना, क्या टेंशन है? मैंने बोला सर टेंशन ये नहीं है भरेंगे करके, कल की कल भरना है और बैंक से सर्टिफिकेट लाना है, वो सभी में मुझे जमा करना है, तब जाके परसों आईपीओ खुलेगा आपका, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो. देन ही गॉट, भाई वेंकट तू बोल क्या रहा यार, एक दिन में 3 करोड़ लाऊं, वो भी रात को 10 बजे बोल रहा है कि कल सुबह 10 बजे 3 करोड़ जमा कर दो, मेरे को सर्टिफिकेट भेज दो. देन बिकॉज आई वाज सो यंग ही डिड नॉट ट्रस्ट मी. बोलता है कुछ शायद फेंक रहा होगा, ये गलत बोल रहा है, प्रोविजन का मिस इंटरप्रेट कर रहा है. देन ही कॉल्ड अप अनदर वाइस प्रेसिडेंट अनदर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है. द प्रोमोटर कॉल्ड द जेंटलमैन. बोलते कि ये वेंकट कह रहा है कि 3 करोड़ कल की कल जमा करना, नहीं तो इश्यू बर्बाद हो जाएगा, इश्यू खुलेगा नहीं, बहुत कुछ बोल रहा है ये. देन द अदर जेंटलमैन सेड व्हाट इज सेइंग इज राइट. थोड़ा डिले हो गया है लेकिन वो सही कह रहा है, आप कर लीजिए. देन गाइस, मेरा जो हाल था ना, 3 करोड़ अरेंज, रातों रात 3 करोड़ अरेंज करने का, उसने मेरे को कितना गाली दिया. बोलता है 3 करोड़ तुझे क्या लगता है भाई वेंकट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006, अराउंड 17 ईयर्स बिफोर. 3 करोड़ बड़ी चीज होती है. बोलता है वेंकट 3 करोड़ रातों रात कहाँ से अरेंज करूं मैं, दे आर वेल्दी पीपल बट लिक्विड कैश रहना 3 करोड़ इट्स वेरी डिफिकल्ट. देन बोला ठीक है. मैंने बोला सर जो भी है, अभी मेरे को याद तो आ गया, अगर मान लीजिए परसों याद आता तो क्या करते आप, तो इश्यू खुलता ही नहीं था. He said yes, I will try to do something. Then I followed up with him the entire night. I called up him morning 10. मैंने बोला सर जमा कर दिया क्या 3 करोड़, जमा कर दिया क्या? तो he got angry on me. भाई ऐसे बोल रहा है कि तो मेरे पॉकेट में लग के घूम रहा हूँ, 3 करोड़ जमा कर दूं. बोला टाइम तो लगेगा, मेरे को अरेंज करने दो. Then I called him at 2 o'clock in the afternoon. He said yes, we are in the process. मैंने बोला सर 4 बज गया, अभी तो बोल दो. At 4:30 in the evening, those guys have deposited 3 crores in the bank. And I said, I need the bank certificate immediately, based on which I could issue a certificate to SEBI saying that the minimum promoter contribution has been received. Then फटाफट रात को मैं 6 बजे शाम को वेट किया है. जैसे आया मैंने एक लेटर बनाया मर्चेंट बैंकर की तरफ से कि दिस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज बीन रिसीव्ड. नाउ मेरा गाइस, यू डोंट बिलीव मी, अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. आई वुड हैव लॉस्ट द जॉब, जॉब की तो परवाह ही नहीं थी, बट किसी एंटरप्रेन्योर का ड्रीम्स के साथ मैं खेल रहा था बिकॉज ऑफ माई प्योर आई वुड से, आप नेग्लिजेंस बोलो, लापरवाही बोलो, या भूल गया, भूला भुड़कपन, जो भी बोलो, दिस थिंग हैज हैपेंड विथ मी. आई करेक्टेड द सिचुएशन नोइंग फुली वेल व्हाट मिस्टेक आई कमिटेड. मैंने खुद ही रियलाइज करके मैंने खुद ही उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश किया. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, इश्यू वाज सो सक्सेसफुल. इश्यू गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 40 times, 70 crores का इश्यू. एंड I'll share one point with you. The company for which I did the IPO, the name of the company is Kaveri Seeds Limited. अभी भी हैदराबाद में है वो कंपनी. 300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमने शुरू किया है, 70 करोड़ रेज किया मार्केट से. Guys, do you know what is the valuation of that company today? That is 5,000 crores. It is more than 5,000 crores. You know the kind of satisfaction that I derive today. यार किसी कंपनी के लिए मैंने एक रोल निभाई थी फंड्स रेज करने में, आज वो कहाँ है? उसके पीछे पूरा मुंबई पड़ा हुआ है प्रोमोटर के पीछे कि मेरे को शेयर्स दे देना, मेरे को शेयर्स दे देना. बिकॉज दैट गाय ओनली फोकसेस ऑन हिज कोर बिजनेस. ही डजंट टिंकर अराउंड. पैसा आ गया तो मैं कुछ भी करूं.
ऐसा सोच नहीं है. So what I have learned out of this is, if you focus on core, no matter how tough it is, you will come victorious. This is particularly to my professional colleagues who are into service or in practice. core में focus करो, deviate मत होना. पहले तो मुश्किल ही लगता है, बहुत ठोकर खाने पड़ते हैं, कभी कभी लगता है कि बाहर ही हो जाए हम इस पूरा प्रोफेशन से. I don't know, but if anybody is going through or might go through these situations, mind you just hang there, be patient, admit your mistake, try to rectify it. You will come victorious. I am a living example before you. इतना बड़ा मिस्टेक कमिट करने कंपनी में कंटिन्यू हुआ, बहुत बड़ी बात. एंड माय जॉब कंटिन्यूड, आई गॉट द बोनस ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर, सब कुछ अच्छा हो गया है. देन आई जॉइंड आनंद राठी. हाँ जी सर. Great, great. Really ग्रेट क्या learned a है, lot. एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ teaches you something. Be bold enough to admit your mistake, no matter how big it is. This is what I have learned, I want to share with you. From there onwards, I moved to another company, and then to another company, Bank of Baroda Capital Markets. There again, I did the same thing, mergers, amalgamation, open offers. Guys, I left the job of investment banking, which is very lucrative. The reason is, advisory काम में मैं 8-9 साल था. मेरे को एक ही चीज लगा, यार एडवाइस तो बहुत दे दिया. अभी नंबर बैलेंस शीट पे हम एडवाइस करते थे कि आपका प्रॉफिट 10 करोड़ नहीं है तो हमसे बात मत करिए, आपको प्रॉफिट 5 करोड़ नहीं है तो आपको मार्केट में कोई भाव नहीं देगा, आपको आईपीओ नहीं हो पाएगा. ऑल दिस ज्ञान वी यूज्ड टू गिव टू आवर क्लाइंट्स, बिकॉज अपना जॉब ही ज्ञान देने वाला था. कंसल्टेंट का जॉब क्या है? ज्ञान दे देना सामने वाले को. भाई वो प्रॉफिट लाएगा कैसे, कितना मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, वो हमें क्या लेने देना. भाई आईपीओ करना है, फंड चाहिए तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ऐसे ऐसे मल्टीपल्स चाहिए, तभी आईपीओ हो पाएगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट में. ये हमारा ज्ञान दिया गया है, ऐसे ही बोलो प्रोमोटर को. हमने बोल बोल के थक गए. देन आई गॉट इंक्विजिटिव अबाउट हाउ दिस नंबर्स आर एक्चुअली अराइव्ड इन बैलेंस शीट्स. ये किसकी वजह से नंबर बनता है भाई? बिजनेस की वजह से नंबर बनता है, और बिजनेस में कोई एंटरप्रेन्योर मेहनत कर रहा है, उसकी वजह से नंबर आता है. देन मुझे लगा कि अभी टेबल को उस पार जाके देखते हैं कि नंबर आएगा कैसे बैलेंस शीट में. इस तरफ वाला ज्ञान तो बहुत दे दिया, अभी उस तरफ जाके देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस नंबर्स आर अराइव्ड इन बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. देन आई टुक अ डिसीजन टू जॉइन जावेद हबीब एज अ सीएफओ. आई टुक द बाइट रादर. आई जॉइंड दिस कंपनी एज सीएफओ एंड लीगल हेड, एंड देखा कि नंबर्स बनते कैसे हैं. देन आई ज्वाइनिंग के बाद बनाए कि नंबर तो बनाए भी जाते हैं. आई एम सॉरी टू टेल यू, नंबर्स बनाए भी जाते हैं, बन भी सकते हैं. That was my first learning in the first 3 to 4 years. Another thing I want to point out, guys, is an important aspect of my life which I consider has helped me. God has helped me. मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल में पेपर्स डाल दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इधर सीएफओ का ऑफर आया, सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, अच्छा हाइक मिला है. आई हैव पुट इन माय पेपर्स एंड आई वाज इन नोटिस पीरियड. Then suddenly I got a call in the night from this company, Javed Habib. The CEO at that point in time called me. वेंकट एक प्रॉब्लम है. मैं बोला क्या सर, क्या हो गया? ऑल वेल? ही सेड ऑल वेल बट समथिंग इज नॉट वेल. मैंने बोला बताइए क्या है. बोलता है सडनली देयर वाज अ ह्यूज रेड बाय सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ कैश एंड वी नीडेड सम फ्यू क्रोर्स अर्जेंटली, कैन यू अरेंज. मैंने बोला भाई मैंने तुम्हें भरोसा करके उधर रिजाइन करके अभी तुम्हारा कंपनी एज ए सीएफओ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सामने से मुझे बोल रहे हो कहीं से पैसा मिलेगा क्या, कुछ रेट पड़ गई. गाइस जस्ट इमेजिन हाउ आई वुड हैव बीन. आई वांट यू टू स्पीक बिकॉज मेरा ना वापस जब भी शेयर करता हूँ सब चीजें दोहराते हैं, पास्ट में चला जाता हूँ, आई बिकम इमोशनल एंड ऑल. जिसमें जाना चाह रहे हो वही अपना प्रॉब्लम दिखा रहा है कि मेरा रेड हुआ, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को रुपए चाहिए. मैंने बोला भाई मैं तेरे साथ ज्वाइन करने का मेरा अपना सपना देख रहा हूँ, तुम तो रिवर्स ही दिखा रहे हो मेरे को. देन आई सेड वेल सीईओ साहब मैं ट्राई करता हूँ, कुछ होगा तो. देन द जेंटलमैन वाज सो गुड. यू नो व्हाट ऑफर ही हैज गिवन मी. वेंकट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इफ यू वांट टू विड्रॉ फ्रॉम दिस ऑफर यू कैन स्टे बैक एट बीओबी कैपिटल. बिकॉज मेरा बीओबी कैपिटल का बॉस बोलता था वेंकट मत जाना, ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक मी एंड टेक मी बैक. देन दिस जेंटलमैन गिवन मी ऑफर. अभी कंपनी का स्थिति अच्छी नहीं है, आप अगर उधर ही रहना चाहते हैं रह लीजिए, बिकॉज सो कंफर्टेबल, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियली सो साउंड. Then I did not take even a minute. I said to the CEO, CEO जी एक चीज है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है आपके सामने अभी. I don't know how can I help you to raise that money to help your cause. But एक चीज तय है, मैंने एक निर्णय ले लिया है टू आपके साथ सफर करने का एज ए CFO.
But this is my decision. I will not go back on my decision and I will not ask my boss to keep me back. अभी जो भी होगा, दुख होगा, सुख होगा, आपके साथ ही होगा. I will not go. I'm not going to go back. I'm joining you on the given day. My joining date was on June 12, 2012. मैंने बोला उसी दिन पे ज्वाइन कर रहा हूँ, भले आप प्रॉब्लम में हो या प्रॉब्लम में नहीं हो, प्रॉब्लम से बाहर आओगे. I really don't care, but I will sail with you, irrespective of the problems. That guy appreciated me. Venkat, I really appreciate. इतना सब बोलने के बाद मैंने तेरे को बोला वापस चले जाओ. फिर भी you want to come with us? Yes, I have made a mind. I have made up my mind. I will come with you. I joined. Mind you guys, for initial 6 months, 12 months तक सैलरी टाइम पे नहीं आती थी. सैलरी के लिए कभी किसी ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, कब किसी ने क्या स्वाइप किया, किसी ने पर्सनल अकाउंट में डाला, किसी से ये किया है. इट वाज सो टफ इनिशियल 12 मंथ्स. देन मेरा तो बहुत बड़ा सोच था, मैं कंपनी को ये कर दूंगा, उस तरफ का चीज देख लूंगा, नंबर बनते कैसे हैं. तो मेरा सैलरी बनने रही थी, बोले नंबर कहाँ से बनेगी बैलेंस शीट. सो आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि क्या करना है. बट आई मेड अप माय माइंड अगेन, you know, let us focus and let us try to do good stuff and let us try to come out of this situation collectively. भाई अकेले बंदे से कुछ होगा नहीं. There is a collective work that has to go into any successful effort. So I just hanged on there, continued with the company. प्रॉब्लम्स थे. हमने काफी सेल्स टैक्स की जो राइड हुई थी उसका सब हमने चुका दिया. उसके बाद इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हुआ था, वो भी हमने चुका दिया. Friends, you won't believe me, the journey has been so eventful. I have learnt a lot how to be patient and calm during tough times. कोई भी नॉलेज काम में नहीं आता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है घर चलाने की. ऑल डिग्रीज विल बी आपके सामने दिखते रहेंगे. ये डिग्री का फायदा क्या है जब घर चलाने की पैसा नहीं है. बट आई विल टेल यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस, पेशेंस रखोगे, अपने आप पे भरोसा करोगे तो जीत जाओगे. बन जाओगे कपिल सिब्बल, बन जाओगे राम जेठमलानी, मैं गारंटी देता हूँ. Let us meet after 15-20 years. What is your objective? I am just taking Ram Jeठmalani as a symbolic figure because you guys are in the legal profession. You can become, but you have to become in your mind first. Unless you become something in your mind first, you cannot become tangibly in our real lives. दिमाग में बना लो मैं बन जाऊंगा, मैं बन गया, अभी करना कैसा है. So you will accordingly act. और एक्ट करते करते शायद बन भी जाओगे, शायद क्या बन जाओगे. लगन है तो भले ही केसेस में हार जीत होती है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस नहीं आता है, कभी आता है कभी चला जाता है, आया हुआ चीज भी हाथ से निकल जाता है, जो मेरे साथ पूरा लाइफ में हुआ है. बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ. यस, देयर वर सम मोमेंट्स ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट वेयर यू थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज appearing black to you. However, Sadhguru कहते हैं, the moment you wake up in the morning, that itself is a great gift to ourselves. That we see that we are alive. उससे बड़ा गिफ्ट क्या है? I try to draw inspiration from all the great speakers around the world. और एक चीज मैंने सुना है ओशो जी का, ओशो रजनीश, many of you are very well aware. ओशो जी कहते हैं, भैया जिंदगी में कोई सलाह नहीं देने वाला मिल गया ना, उसको प्रणाम कर देना. ठीक है. All of us are obsessed with giving advices, including myself. So मैंने नित्या को मैं कोई ज्ञान भी नहीं दूंगा, मैं कोई एडवाइस भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. Guys, we are reaching at the end of the conversation. We have 5-7 minutes left. So after being CFO, and the biggest problem was COVID, which the entire world has faced. We were struggling for our existence. And on one single night, मैं तो बोला मैं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा. I am getting frustrated. CFO रोल में 9 साल हो गया यार, अभी आगे कुछ करना है. माइंड कहती है भाई बहुत हो गया. I called up my investor in Singapore. Guys, the investor is not a small investor. That guy is worth of 5,000 crores. Just imagine, I was trying to convince him, boss, अगर कंपनी इस तरीके से नहीं चलेगी तो बंद हो जाएगी, ये मेरा गारंटी है तुमसे. बोलता what nonsense are you talking? He said, no, I am talking full sense. Either you give me the charge of the company or I leave the company. क्योंकि चीजें अच्छे नहीं जा रहे हैं, कोविड भी है, चीजों को सही तरीके से लेके नहीं जाएंगे, entire system will collapse. And we are a system where there are around 8,000 people are employed, directly or indirectly. There are 800 entrepreneurs
who have invested their hard-earned money in our system. Javed Ayub is a very big brand name in our country today. मैंने बोला अगर सही तरह से नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम होगा. Then he said he has actually बोला है कि बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं. बोला सर कॉन्फिडेंस तो है लेकिन देखेंगे, एक बार आप मौका दीजिए मुझे. CEO is something which was not given to me, friends. I want to tell you again, मैं CEO अपना खुद का मर्जी से बना. मेरे को बोर्ड ने बोला नहीं कि तुम CEO बन जाओ कल से. No, I said I went to them and said today I want to be CEO of this company because I have some vision for this company. I want to drive this forward in these difficult times. This was I went to them. जैसे मैं 8,000 जॉब के लिए पूरा दिल्ली में रिवॉल्व हो रहा था, मैं इस कंपनी में भी रिवॉल्व हो रहा था कि आगे क्या काम करूं. Then I revolved around the investors and lobbied them. भाई ये अच्छा काम करने को मैं तैयार हूं, बट आप मुझे मौका नहीं दे रहे हो, मेरे को CEO पोजीशन दो, मैं करके दिखाता हूं. देन उनको लगा कि भाई ठीक है, सैलरी तो वही मिल रही है, सैलरी तो ज्यादा हाइक देना नहीं है, घर के मुर्गे दाल बराबर दे देते. देखते वैसे ही कोविड चल रहा है, ये बंदा कुछ अजूबा कर देगा, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. तो दे सेड ओके यस यू आर सो कॉन्फिडेंट, लीड द कंपनी, देखते हैं क्या करेंगे. बोलते हैं आपको क्या हाइक चाहिए. मैंने बोला सर ज्यादा हाइक नहीं चाहिए, मैं प्रोमिसेस फुलफिल करने के बाद हाइक मांगूंगा आपसे, मुझे केवल 50,000 ज्यादा दे देना महीने में, एडिशनल ओवर एंड अबव व्हाट आई वाज ड्राइंग एज अ सैलरी. दे सेड दे वर वेरी हैप्पी. भाई इसका मुंह इतना छोटा है, 50,000 मांगा इसने महीने में. दे वर वेरी हैप्पी. बोला ठीक है बन जाओ, कब मिलते हैं. बोला सर बोर्ड मीटिंग बुलाओ, अपॉइंट कर लो, आगे में जो करना है देख लूंगा. देन दे कॉल्ड अ बोर्ड मीटिंग, दे हैव अपॉइंटेड मी. तो दे वर वेरी हैप्पी. बस सस्ते में मिल गया. अभी कोविड चल रहा है तो चल ही रहा कहानी. Then guys, you won't believe me, I got the offer of CEO in February 2021. Second wave से पहले एक महीना CEO मिला. Again I celebrated like I was celebrating in 2003. भाई CEO बन गया, अभी सेलिब्रेशन का टाइम है. I celebrated like hell. एंड उसके बाद पता लगा मार्च में पूरा इंडिया बंद है, सेकेंड लॉकडाउन हो गया है, एंड देयर वाज chaos अराउंड, पीपल वर डाइंग. अभी CEO के करूंगा क्या. भाई किसके CEO बन गया जो कंपनी काम करने के अलाउड ही नहीं है, दुकान खुलने का परमिशन ही नहीं है, ऑफिस जाने का परमिशन नहीं है, ये कागज कहाँ रखूं मैं. आई वेंट थ्रू अगेन 4 months ऑफ सेकेंड लॉकडाउन का पीरियड का. आई वेंट थ्रू सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन. सब कुछ हो गया, अभी डेजिग्नेशन में मिल गया, लेकिन पूरा दुनिया बंद पड़ गई. तो क्या करो इस डिग्री के साथ, इस डेजिग्नेशन के साथ. देन आई अगेन वेटेड पेशेंटली. आई यूज्ड टू हैव सो मेनी आवर्स ऑफ डिस्कशंस विद माय कलीग्स. नहीं मेरा ये विजन है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चलो लेट अस ट्राई. व्हेनेवर थिंग्स गेट बेटर एंड गवर्नमेंट गिव्स अस परमिशन टू ओपन अप, कुछ करने की कोशिश करते हैं. Then ultimately the industry got permission. Our industry got permission to open up in August. We were the last to give the permission. Salons were given the permission at the last minute. तो अगस्त में खुला है. Then I said भाई ऑलरेडी 5 महीने निकल चुके हैं मेरा CEO बन के, सब बंद पड़ा है, कुछ जल्दी से जल्दी कुछ करो. Guys, mind you, I believed in myself. In 8 months of operations, I made the company profitable, and the growth was, जो ग्रोथ नहीं कहूंगा, प्रीवियस कोविड फिगर्स पे पहुंचा दिया फ्रेंड्स. 8 महीने में प्रोपोर्शनेट में मैंने प्रीवियस कोविड फिगर्स को सरपास कर दिया है. आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ. यू प्लीज बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम नॉट लाइंग. माई बुक्स, माई पेपर्स आर फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज. ऑल ऑफ यू कैन वेरीफाई वेदर आई एम लाइंग और नॉट. आई मेड इट प्रॉफिटेबल इन द वेरी फर्स्ट 8 months ऑफ माई CEOship, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टूड वेयर वर द लूप होल्स, व्हाट टू फिक्स, किसको फिक्स करेगा, कौन सा नट को टाइट करेगा, चलेगा गाड़ी, सब कुछ मैंने ट्राई किया कोशिश. तो फर्स्ट 8 months of operations went very well. Then another month I got the company into 4 crores of profitability. 4 करोड़ का प्रॉफिट लेके आया था उसका अगले साल 22-23 में. अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए बिकॉज बट आई हैव गॉट द लिबर्टी, अनऑडिटेड फिगर्स हैं. सो 4 करोड़ का प्रॉफिट में लेके आया, एंड आई एम नाउ ट्राइंग टू मेक दिस कंपनी a $1 billion कंपनी. दिस इज माई ऑब्जेक्टिव एंड विजन. ए यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इन हेयर एंड ब्यूटी सेक्टर, $1 billion वैल्यूएशन. ये मैं करके ही रहूंगा, ये मैंने इन्वेस्टर्स को भी वादा किया था. जस्ट आप लोग इसमें घुसना मत, डोंट इंटरफेयर. जब पैसा मांगूंगा दे दिया करो बस. और मेरे से सफाई लेना एंड ऑफ द ईयर पे कि ये क्या किया तुमने इसके साथ. मैं सफाई दे दूंगा क्या क्या मैंने उसके साथ किया, बट आई विल रियली मेक दिस कंपनी $1 billion कंपनी. दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव, एंड सेम ऑब्जेक्टिव के साथ मैं अभी निकल रहा हूँ. एंड रिसेंटली आई हैड अ मीटिंग विद एन इन्वेस्टर हु सेड आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. सो फ्रेंड्स, दिस इज एन ऑनगोइंग जर्नी. It is never an end. The professional learning के लिए कभी end नहीं होती है. But only thing is you believe what you believe in, you have to act upon and be patient. Things can be achieved, things will be achieved. हो सकता है मेरा बाद कोई आएगा वो $1 billion कंपनी बनाएगा, but
ये जरूर कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा फाउंडेशन डाल रहा हूं जो आज की भारत की सरकार फाउंडेशन जो डाल रही है, इसके फ्रूट्स 2030, 40, 50 में मिलेंगे। वैसे ही मैं अपने कंपनी के लिए दिल जान लगा के काम कर रहा हूँ। ऐसे एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ जो $1 बिलियन की ओर ले जाएगी, पूरा सिस्टम को ले जाएगी। और एक चीज मैं कह सकता हूँ, मैं गर्व से क्यों कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ ए कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट, बट बिकॉज of the contribution that we are trying to make to the economy of the country by creating more employment, by creating more entrepreneurs out of our system. That is what is I'm proud of. I really take pride in that. हमने 1000 एंटरप्रेन्योर क्रिएट किया है, 10,000 की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, 20,000 बच्चों की हमने शिक्षा दिया है हेयर एंड ब्यूटी वर्टिकल में। उसके लिए मैं अपने आप पे गर्व लेना चाह रहा हूँ। I take pride in that, not because of any other figures. Figures are just a consequence of the actions and intentions. That's all, my friends. Sorry, I took a very long time, but No, again, of course, it is a very, I very will conclude. knowledgeable I'll conclude. person. Yes, please. No, I conclude open to you. Sorry, आप लोगों को टाइम भी नहीं दिया। मैंने बोला engaging बोल के मैं फ्लो में चलता ही गया। And please let us discuss this next 5-6 minutes. For any discussion, I'm open and share anything. प्लीज किसी भी हमारे साथी को कोई भी अगर डिस्कशन करना कुछ पूछना हो, इतना अच्छा अनुभव हमारे रवि जी ने शेयर किया। सर मैं ज्ञान प्रकाश सक्सेना दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मुझे Sir, आपके पूरे सबसे पहले सर आपकी स्टोरी जो है ना बहुत इंस्पायरिंग लगी। इंस्पायर मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन चूंकि आपकी स्टार्टिंग हुई थी स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं, और मैं भी स्टॉक मार्केट में चूंकि एक्टिव हूँ, और आपने एक बताया था पृथ्वी इन्फो आपका पहला शायद आईपीओ था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो माधवी जी के, तो उनके फादर जो इसरो में हुआ करते थे। अच्छा जी। या एट दैट टाइम, मतलब आपका टोटल जो जर्नी था ना, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और आपने एक जज के पॉइंट पे एक बात कही, बहुत अच्छी पॉइंट कही, जज को आप अपने पॉइंट पे ले आइए, देन यू बिकम ए विनर। और ऐसा चूंकि मेरे साथ हुआ है, तो जी। आपने जो एक वीकर साइड कभी होता है ना, तो उस पॉइंट पे आपने और भी स्ट्रांग किया कि या आप जिस पॉइंट पे चल रहे हैं वो आपका पॉइंट सही है। रियली थैंक यू, आप हम लोग के साथ आपने अपना कीमती टाइम दिया। इट इज रियली thank you. I am privileged to speak for all this great audience, and in fact, I thank Nitya also for giving me this time. I hope I haven't wasted your 1 hour's time. Yes, And, of course, it's not. You have shared अगर मेरा your पिछले experiences. 1 घंटे का शेयरिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस में किसी को भी कोई भी फायदा हो, आई एम रियली ग्रेटफुल। Very good. I mean, all right, and you had done very well. Really, I mean, this is going to be a particular lesson for all the junior, अपनी होंडा ले लेते। हमारे और किसी साथी को कुछ अगर जानना हो, हमारे यंगस्टर साथी भी यहाँ पे हैं कुछ। सर मेरा नाम सुशील कुमार यादव है और मैं नित्या सर का जूनियर हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं और मतलब सर आपका ऑडियो हमें गलती अब आ रहा है सर? हेलो। हाँ जी अभी आ रहा है। तो सर हमसे गलती से मतलब 1-2 बार 3 बार गलतियां हो जाती है, तो फिर होपलेस होने लगते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर अंदर से होता है ये कर ले, फिर मतलब सीनियर का भी डांट सुन लेते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? सर पहले क्या है ना, मेनी ग्रेट पीपल हैव बीन सेइंग, राइट, ग्रेट फिलोसोफर्स। मैं बड़ी बात से शुरू कर रहा हूँ बट छोटी बात पे आ जाऊंगा। द क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हार जीत तो लगी रहती है। आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को लीजिए, फिलोसोफर कहिए, बाबा कहिए, मॉन्क कहिए या बिलियनियर कहिए, इन सब में एक कॉमन पॉइंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं हारोगे। आप देख पाओगे प्रिज्म से कि भाई आप शीशे से इतना क्लियरली देख रहे हो, हार भी गए तो आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों हार गए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए किस रीजन की वजह से ये हुआ है। अगर ये आप एनालाइज कर सकते हो विद फुल क्लैरिटी, सर आई गारंटी यू विल नॉट फेल, यू विल बिकम ए ग्रेट लॉयर। हार जीत नहीं है तो मजा नहीं आएगा लाइफ का। बट द मोमेंट यू लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, द मोमेंट यू लूज द क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू, व्हाट यू आर सेट आउट टू अचीव, ये बड़ा समस्या आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ।
particularly younger generation में होता है क्या है, success is measured by the fee that you charge as an advocate. Success is measured by the CTC that a person receives from a company. Success is measured by the packages that people get at universities. That is not complete success. I'll say that is part of the success. But complete success is the purpose that you are set out for. Are you really on that path or not? Achievement is a completely different process. Achieving वो सब other forces के हाथ में है. But क्या उस पाथ में कम से कम कोशिश जा रहे हो, उसी पाथ में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये मुंबई से दिल्ली जाना है, मैं तो निकल पड़ा चेन्नई के लिए. भाई मैं दिल्ली के निकलना था, चेन्नई के डायरेक्शन में हूँ. क्या मतलब कैसे अचीव करूंगा? So I believe the clarity of thought is very important to achieve anything. Okay, thank you, sir. Gentlemen, please, you can bisect me, trisect me, whatever you want to do out of my entire discussion. Please feel free to any positive, negative things. There is nothing called positive or negativity in the life. It is all how we view it. So I take the entire thing. कोई भी conversation में, if somebody wants to engage with me, please feel free. Am I audible, sir? Yeah, absolutely. First of all, good afternoon, sir, and thank you for sharing your motivational journey with us. Good afternoon. Thank you. Actually, I wanted to ask that you said that after Companies Act 2013 and NCA 21 filing, like it boosted up the CS profession. And did you ever thought of starting your own practice? सर मैंने प्रैक्टिस के बारे में सोचने से पहले, क्योंकि कंपनीज एक्ट की पूरी नॉलेज थी नहीं है, एज आई बिकम द कंपनी सेक्रेटरी एंड जॉइन द जॉब, प्रैक्टिस से सोचने से पहले मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अवकाश अपॉर्चुनिटी मिला है, वो मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. द रीजन इज, फ्रेंड्स, व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ द एंटायर स्टोरी इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे सारे चीजें चलते हैं, चाहे वो सीएस हो, सीए हो, कोई बिजनेस हो. जब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, तरक्की नहीं होती है. यू माइट बी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अराउंड इन इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल. हर्षद मेहता के स्कैम से हमने ये सीखा है, एटलीस्ट मैंने ये सीखा है, एक जन ने गलती करके चला गया, बट उसने लोगों को मार्केट्स का बुलंद इतना कर दिया है. पीपल हैव फ्लॉक्ड टू द मार्केट्स टू रेज फंड्स and many corporates have raised funds. So much of capital has been created even because of that scam. So capital formation जब होती है, सबको जॉब मिलेगी, प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, केस लड़ने का भी मौका मिलेगा, झगड़ा करने का भी मौका मिलेगा. लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जिस कंट्री में नहीं होती है, इट इज लेड बैक होते हैं. तो हमने देखा है 90s से पहले सिचुएशन क्या था. So capital formation is very important for any business or profession to thrive. बट मैंने प्रैक्टिस के लिए कभी सोचा नहीं था इतना. जब चीज ही समझ गया, भाई पूरा खेल कुछ और ही है. Yes, sir. Without disregarding to all the great practitioners and you guys, मेरा जर्नी कुछ और हो गया. फिर मैं सोचा नहीं था उसके बारे में. सभी लोगों के अपने अलग अलग जो है वो रहते हैं ना कि हमें करना क्या है. क्योंकि जैसे आपने बताया कि भाई यू शुड बी वेरी, योर थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर कि आपको जीवन में करना क्या है. अगर आपको जीवन में अगर प्रैक्टिस करना ही नहीं है तो उसके बारे में आदमी सोचता नहीं है. जिसको जो करना है उसी के बारे में तो सोचेगा. अगर इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रैक्टिस एंड यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गो फॉर द प्रैक्टिस, देन यू विल सर्टेनली विल थिंक ओवर इट. अगर किसी को और कुछ करना है तो उसके बारे में सोचेगा. जब because you guys, I salute all the practitioners including my Nitya bhai who is friend, because practitioner जैसे बनते ही अपने आप में भरोसा day one से आपने establish कर दिया है. दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम मैनेजमेंट पार्लेंस में कहते हैं. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? कोई भी फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मांगते हैं. सो द मोमेंट यू स्टार्टेड प्रैक्टिस, दैट इटसेल्फ इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. यू आर देयर, यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर सेट आउट टू सॉल्व सम कॉर्पोरेट प्रॉब्लम और सम लिटिगेशन. सो भरोसा तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया है. आगे भरोसे की बात नहीं, आगे काबिलियत की बात है और लगन की बात है, नथिंग एल्स. और हमारे कोई साथी, आई एम कंपल्सिव स्पीकर. सीईओ बनने के बाद कुछ अंदर भी, कंपनी के अंदर भी ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ रही है टू मोटिवेट माय स्टाफ एंड ऑल. तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा. क्लैरिटी ऑफ थॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यस मिस्टर हर्ष, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. हर्ष जी.
Good afternoon, sir. Good afternoon, ji. Good afternoon. Good afternoon. First of all, sir, Nitya sir, I would like to thank you for organizing and inviting us in such a wonderful session. And secondly, I would like to thank Venkat sir for sharing such beautiful insights about his journey with us. सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन वेंकट सर आपसे रहेगा कि एज अ यंग स्टूडेंट्स हम मतलब कभी कभी डिसीजन मेकिंग में लैग कर जाते हैं अपनी लाइफ में, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी अफेक्ट कर जाता है और जी। हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ चीजों से। अगर हम किसी अच्छे लॉयर को देखते हैं लिटिगेशन में तो हम लिटिगेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किसी कॉर्पोरेट लॉयर को देखते हैं तो वहां काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है। तो उसमें आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि डिसीजन मेकिंग क्या एक रोल प्ले करती है फॉर अस एज यंग स्टूडेंट्स और हमें उसे कैसे फर्म रखना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द एंटायर करियर और पर्सनल लाइफ इटसेल्फ इज अ मिसनॉमर. At the age of 25 or 27, you cannot decide for your 50 years of life. That is number one. Let us have very clarity on that. Whatever you can decide for next couple of years or at max 3 years. Right, sir? Correct me if I'm wrong. जी सर. So आप पूरा जिंदगी में क्या बन जाऊंगा, कैसे बनना चाहता हूँ वो छोड़ दीजिए. Make that big task into smaller pieces of 2 years or 3 years at max. अगले 3 साल में मुझे करना क्या है? देखिए, अगले 3 साल में आप राम जेठमलानी नहीं बन सकते हो, बट उन्होंने जहां शुरू किया था आप शुरू वहां जरूर कर सकते हो. बट 4 लोगों को देख के आपने शुरुआत ही गलत कर दिया तो आप उस बात में कभी हो ही नहीं. सो नेवर एवर थिंक, यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेंडिंग और करियर्स और प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ऐसे कोई चीज नहीं कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो. आज आपको कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बनना है, आपको लिटिगेंट लॉयर बनना है, बन जाओ. कल उठ के कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो, ये मेरा कहना है. ऐसे कोई रोकने वाला नहीं है कि आप कॉर्पोरेट लॉ नहीं कर सकते हो. द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज टू टेक दैट पर्टिकुलर केस और कंसल्टेंसी इन हैंड. आर यू इक्विप्ड विद दैट? फ्लेक्सिबिलिटी हम सब चाहते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इक्विप भी होना पड़ता है अपने आप को. लेकिन अपना एक्सपीरियंस अपने को इतना धोखा दे देती है, भाई मैं तो इसमें स्पेशलाइजेशन किया है तो यही काम करूंगा मैं, बिकॉज इस बंदा दूसरा चीज पढ़ नहीं सकता है, दूसरे में समय नहीं दे सकता है, इसलिए अपने आप को हमेशा बोलता है कि मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया है, मैं दूसरा नहीं करना है. बट बात वो नहीं है. अगर करना है एक ही चीज को और बढ़ जाइए, अगर चेंज करना है तो चेंज के लिए भी अपने आप को ओपन रखिए. बट होता क्या है, आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम यू ट्राई टू मेक मोर रिजल्ट्स आउट ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, विच इज ए स्वाभाविक है एक ह्यूमन का. स्पेशलाइजेशन में वो इफेक्ट है, भाई ये लॉयर बहुत कॉम्पिटेंट है, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट मोर बिजनेस, मोर क्लाइंट्स, मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर फेम, मोर नेम. वो चांसेस ज्यादा होते हैं. बट अगर आपका मन कहता है कि 4 चीजें में हाथ डालना है तो डालिए ना, कौन मना कर रहा है. बट ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मेरे को उस बंदे को जितना मिल रहा है मेरे को भी उतना मिलना चाहिए जो 50 साल से वही काम कर रहा है. जी सर. दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पैसा बनाना है, अच्छा लॉयर बनना है, तो एक ही उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहिएगा. एंड हर एक 3 साल में अपना अपना गोल चेंज करते रहिएगा. यू कैन नॉट डिसाइड फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर श्योर. अगर कोई किसी ने ऐसे सोच लिया तो आई डोंट नो भाई, मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं अगले 10 साल में करूंगा क्या मुझे भी नहीं पता आज की तारीख में. जो मौका मिलता जाएगा उसको फायदा उठा के जाना है. सो डोंट ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट और इम्प्रिजन योरसेल्फ विद ए स्ट्रेटेजी ऑफ नेक्स्ट 10 years. सरकारी 10 साल की स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है तो हम कौन होते हैं 10 साल की स्ट्रेटेजी लेके बैठने वाले. 10 सरकार भी 5 साल के ही बनाती है. प्लानिंग कमीशन और that latest whatever I don't know the name, earlier it used to be planning commission, तो 5 साल का ही प्लान बनाती है. तो हम लोगों को भी वैसे रहना चाहिए, 10 साल का प्लान नहीं बनाना चाहिए. जी सर. नीति आयोग, I got it now, नीति आयोग. नीति आयोग. Okay, now thank you guys for and also thank Miss CS. Give thanks for Mr. Ravi. He has shared a lot of experiences. And really we are thankful to him. Please go for the thanks. Sure, sir. Thank you, sir. Well, that was a very informative session. I'm sure you all have must learn something from the journey of Mr. Ravi. I read somewhere we are supposed to make mistakes instead of deriding those who admit their mistake and correct their opinion. We should praise them for their humanity and open-mindedness. And here we all should praise Mr. Ravi for their calmness during those tough times. Believe in yourself is really important.
Sir truly said, believe in yourself is the most important thing to succeed. Thank you, sir, for those inspiring words. And I also thanks Vidya Vijay Foundation and Nityanand sir for organizing this informative session. And I again thanks Mr. Venkata Ravindra Ravi for taking out time to be a today's resource person. It was really an informative session. Sir has explained his journey from CS to CEO. It's a really inspirational journey. Thank you so much, sir. And thanks to all the participants for their presence and valuable questions. Thanks a lot. Thank थैंक्स you सभी so साथियों को much बहुत for बहुत giving us धन्यवाद. opportunity. रवि Thank you जी all आपको for your बहुत time. बहुत धन्यवाद. Have a fantastic day. किसी भी and साथी fantastic- को हमारे कुछ अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो देन यू कैन गेट इन टच विथ अस. हमारे ग्रुप से जो है जुड़िए और जो भी ईमेल होगा ईमेल कीजिए. Certainly we'll get in touch. Thanks to all the participants. Thanks to Mr. Ravi, and thanks to our person who has introduced, Ms. Shreyas Singh. Thank you. Namaskar. Thank you so much. Have a wonderful day, wonderful weekend. Nice of you.